Good morning everyone. I am Professor Neetu Ghai and I am here to teach you the question bank solution released by the state board authorities for the students preparing for the board exams. Now I am here your English expert. I'll be helping you in solving the question bank released by state board. Now students, this is the revision time for you. This is the peak time you have to prepare for the board exams. As we all know, board exams are starting from 23rd April. तो अगर अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा तो just follow the question bank and the solution. So I'll be giving you the solution of all the question given in the question paper, question bank released by the board authorities. Okay, now as you all know, the question bank has all the details, all the topics of your syllabus. Now English syllabus की अगर मैं बात करूँ बच्चा, तो English syllabus में the whole syllabus has been divided into 4 sections. The first is prose section, second is poetry, third is writing skill and fourth is novel. So we will do all the sections, all the questions of the sections of the question bank. तो अगर अभी भी कुछ नहीं पढ़ा तो just follow the videos, follow all my videos in which I'll be solving all the questions of the question bank. By this you will be helped to solve the question bank and you will get an idea how to solve the question paper in the board exams. लेकिन उससे पहले, whenever you are preparing for the board exams, do one thing, read the textbook. Just read the textbook so that you can have the basic idea of the concept of the topic. Same way in the English. In English, just read the prose chapters, the chapters given in your textbook, just read them so that you will have an idea for the question number 1 in your board exam paper, which will be a scene passage of 12 marks. तो उस scene passage के लिए बच्चा आपको chapters पढ़ने पड़ेंगे so that you will have the idea of the story, of the characters, so that you can give the answers clearly. Okay, then the meanings, word meaning section जो vocab section आता है exam में, vocab section के लिए you must read the word meanings given in the right side, on the right side of the prose chapters. हर एक पेज पे, उस पेज पे जो भी प्रोज मटेरियल है उसके राइट साइड पे the word meanings are given there. तो just read that. Okay, for the poetry, just read the poetries and read the appreciation of the poetry so that you can write the appreciation nicely. Okay, now अगर मैं novel की बात करूँ, 4.1, 4.2, 4.3 and 4.4 are the novels in your textbook. Just read the novels so that you can have the idea of the drama, of the scene, of the characters. Then you can answer each and every question confidently. Still, no need to fear when Neetu ma'am is here. So we will be solving the question bank step by step, section by section, question by question. So are you ready? Let's start. So students, let's begin with the question bank English, and in English the first part of the English paper will be prose section. Prose section, question number 1 will be of 12 marks. That means the scene passage from your textbook. This 12 marks will be for the passage and the questions based on the passage. These 12 marks will be bifurcated into 2 marks question each. There will be 6 questions which will be 2 marks each. Okay, so let's start. Now, this first question, prose section, first question will be a scene passage and this will be an extract from your textbook. Now read the question, read the extract and complete the activities given below. In every question of the prose section, no matter it is scene passage or unseen passage, the first question will be objective type. So you must be sure to score this 2 marks. ये 2 मार्क्स इजी है और इसको हाथ से नहीं जाने देना. इनको तो ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन हैं, ये आपको स्कोर करने ही करने हैं, ये आपको सॉल्व करने ही करने हैं बिकॉज दे आर वेरी इजी. दीज एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आर वेरी इजी टू सॉल्व. तो लेट्स बिगिन. नाउ सी, जस्ट रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज गिवन बिलो. नाउ दिस जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन is based on your textbook. That is the chapter An Astrologer's Day. जो आपका चैप्टर है उसके ऊपर ही ये क्वेश्चन है. Now read that. कैसे होगा ये?
Punctually at midday, he opened his bag and spread out his professional equipment. अब आपको फर्स्ट लाइन पढ़ने से ही समझ में आ रहा है, ये टेक्स्ट बुक का ही चैप्टर है. तो दिस आई वांट टू से कि whenever you are solving the question paper, अगर आपने चैप्टर्स पढ़े हैं, अगर आपने पोइट्री पढ़ी है, you will fill with the confidence कि अरे ये स्टोरी तो मुझे पता है, ये तो मैंने पढ़ी है. तो whenever you are reading the passage, you must have the idea of the chapters of the textbook. So let's begin with the passage. Punctually at midday, he opened his bag and spread out his professional equipment, which consisted of a dozen cowrie shells. Now, dozen मतलब एक दर्जन. Cowrie shells, the हिंदी वर्ड है बेटा, ये कोड मिक्सिंग यूज किया गया है, हिंदी वर्ड एंड इंग्लिश वर्ड. हिंदी वर्ड इज कावड़ी एंड शेल्स द सी शेल्स. तो जिसे आप हिंदी में कौड़ी कहते हैं, दीज आर द कौड़ी शेल्स. ओके, अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ विथ ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट्स. ऑब्सक्योर, नॉट इजीली अंडरस्टूड. तो अगर वो कुछ अपना प्रोफेशनल इक्विपमेंट लगा रहा है, अपना सेटअप लगा रहा है, तो प्रोफेशनल इक्विपमेंट, द इक्विपमेंट्स व्हिच हेल्प्स अ प्रोफेशनल टू वर्क आउट इन हिज प्रोफेशन. अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो उसका लैपटॉप उसका प्रोफेशनल इक्विपमेंट है. अगर कोई टीचर है तो उनका पेन और बोर्ड उनका इक्विपमेंट है. तो एज दिस इज द प्रोफेशनल इक्विपमेंट ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर, तो वो अपने इक्विपमेंट लगा रहा है. ठीक है बच्चा. नाउ सी, अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ विद ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट्स ऑन इट, अ नोटबुक एंड अ बंडल ऑफ palmyra writing. Bundle of palmyra writing, something written on the leaves to convince the clients. Okay, now his forehead was resplendent with sacred ash. तो जो एस्ट्रोलॉजर था उसके माथे पर एक ऐश लगी हुई थी. सेक्रेड ऐश, भभूति, राख, सेक्रेड डिवाइन, पूजा की हुई. ओके, सेक्रेड ऐश एंड वर्मिलियन. वर्मिलियन मीन सिंदूर. तो उसके माथे पर ऐश लगी हुई थी, राख लगी हुई थी और बीच में सिंदूर का टीका लगा हुआ था. तो अगर आपने स्टोरी पढ़ी है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, तो टेक्स्ट बुक में एस्ट्रोलॉजर का फेस दिखाया गया है, उसका पूरी पर्सनालिटी, उसका गेटअप दिखाया गया है. ठीक है, तो आपको याद आ जाएगा कि उसका कैसा गेटअप था. ओके, and vermilion and his eyes sparkled with a sharp abnormal gleam. Gleam means shine. तो उसकी आंखों में एक अजब सी चमक थी. Okay, now which was really an outcome of a continual searching look for customers, but which his simple clients took to be a prophetic light and felt comforted. Prophetic, divine. तो उसकी आंखों में एक चमक थी और वो चमक अपने कस्टमर्स को ढूंढ के जो उसकी आंखों में चमक आती थी वो एक चमक थी, और उसके क्लाइंट्स उसको एक प्रोफेटिक चमक चमकते थे. दैट मीन्स एक डिवाइन शाइन समझते थे. ओके, द पावर ऑफ हिज आईज वॉज कंसिडरेबली एनहांस्ड. एनहांस्ड मीन्स इंक्रीज होना, बढ़ना. by their position placed as they were between the painted forehead and the dark whiskers. तो उसकी जो आंखें थी वो उसका यूएसपी थी, उसके चेहरे का बेस्ट पार्ट थी, क्योंकि उसका माथा मैंने आपको बताया पूरा भभूत से, जो राख थी उससे ढका हुआ था, बीच में टीका लगा हुआ था, फिर उसकी आंखें फोरहेड के नीचे और उसके नीचे उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी. नाउ सी हियर whiskers means, see here whiskers means mustaches. Okay, now which streamed down his cheeks. So उसकी मूछें बड़ी बड़ी उसके गालों तक आ रही थी. Even a half-wit's eyes would sparkle in such a setting. तो अगर ऐसे चेहरे की सेटिंग एक नॉर्मल पर्सन की हो तो वो भी एक बड़ा ही इंप्रेसिव लगता है. रिमेंबर वीरप्पन, वीरप्पन की जैसी मूछें थी वैसे ही उसकी मूछें थी. तो देख के ही एक बार तो बंदा सोचेगा यार अलग सा चेहरा है, कुछ इम्पैक्टफुल चेहरा है. ओके, नाउ सी, to crown the effect. Now to crown the effect, this word is in your textbook in the exercise behind the chapter. To crown the effect, to increase the effect. उस effect को और बढ़ाने के लिए, crown करने के लिए, best look देने के लिए. Okay, to crown the effect, he wore a saffron colored turban. टर्बन मतलब पगड़ी. अब पगड़ी कौन से कलर की है? सैफरन कलर. तो उसने जो भी अपना लुक बनाया हुआ है, अपना अपीयरेंस बनाया हुआ है, वो उसके प्रोफेशन को परफेक्टली सूट करता है. बिकॉज सैफरन कलर इज ट्रीटेड ऑस्पिशियस इन द हिंदू माइथोलॉजी. ठीक है, सिंदूर लगाया हुआ है, उसने भभूति राख लगाई हुई है चेहरे पर. ये सब उसने अपने एस्ट्रोलॉजर के अपीयरेंस को जस्टिफाई करने के लिए लगाया गया है. अब एक नॉर्मल पर्सन तो अपने चेहरे पे, अपने माथे पे राख लगा के नहीं घूमेगा, टीका लगा के नहीं घूमेगा बड़ा सा. तो जो उसका प्रोफेशनल अपीयरेंस है वो उसके प्रोफेशन के साथ टोटली जस्टिफाइड है. ओके, नाउ
This color scheme never failed. So why this color scheme never failed? Because as an astrologer, he is taking up the appearance of the traditional mythological astrologer. Okay, people were attracted to him as bees are attracted to cosmos or dahlia stalks. तो जैसे एक फूल के ऊपर, एक दहलिया स्टॉक के ऊपर बीज अट्रैक्ट होती हैं, वैसे ही लोग उसको देख के अट्रैक्ट होते थे. एंड दैट वाज his strategy to attract the customers for his profession. Okay, now he sat under the boughs of a spreading tamarind tree. Tamarind इमली के पेड़ के नीचे वो बैठता था, which planned a path running through the town hall park. It was a remarkable place in many ways. अगर आपको इस एक्सट्रैक्ट पर एक क्वेश्चन आता है कि how the town hall park was remarkable, तो आपका आंसर पैसेज में यहां से होगा कि it was remarkable in many ways because a surging crowd was always moving up and down this narrow road from morning till night. तो क्यों रिमार्केबल था? क्योंकि पूरा दिन उस रोड से लोग आते जाते रहते थे. अब वो प्लेस इसके प्रोफेशन के लिए बेस्ट क्यों थी? क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे, बहुत प्रोस्पेक्ट टारगेट थे वहां पर उसके प्रोफेशन के लिए, सो दैट ही कैन अट्रैक्ट मोर एंड मोर पीपल. जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा लोग इसको देख के अट्रैक्ट होंगे और कुछ तो आएंगे इससे मिलने, कुछ तो आएंगे इससे बात करने. तो दैट वाज बेस्ट फॉर हिज प्रोफेशन. Now, a variety of trades and occupations was represented all along its way. Medicine sellers, sellers of stolen hardware and junk, sellers of stolen hardware and junk, चोर बाजार का सामान, चोरी का सामान. तो वहां जो वो बैठता था वो मार्केट प्लेस थी. बाजार लगता है गांव में, बस वैसे ही. तो वो मार्केट प्लेस थी और उस प्लेस पे बहुत लोग आते जाते थे और वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे वेंडर्स थे, सेलर्स थे जो अपने सामान की दुकानें वहां लगाते थे. ओके, जिसमें मेडिसिन सेलर्स, सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, मैजिशियंस यू ऑल नो, एंड अबव ऑल एन ऑक्शनर ऑफ चीप क्लॉथ. ऑक्शनर जो ऑक्शन करता है, जो बोली लगाता है, ठीक है. तो वो चिल्ला चिल्ला के कस्टमर्स को बुलाता है, रेट कम देता है और वो चीप क्लॉथ, सस्ता क्लॉथ. Who created enough din, बहुत शोर, वो चिल्लाए जा रहा है, अपने कस्टमर्स को बुलाए जा रहा है. Okay, all day to attract the whole town. Next to him in vociferousness came a vendor of fried groundnut. Vendor means seller. Okay, vociferousness, noisy, एकदम शोर शराबे में. Who gave his ware means thing, जो अपने सामान को, जो फ्राइड ग्राउंडनट वेंडर था, वो अपने सामान को जो वो बेच रहा था उसको अलग अलग नाम से बुलाता था. देखो, बेच क्या रहा है वो? फ्राइड ग्राउंडनट, भुनी हुई तली हुई मूंगफली. और अब वो लोगों को क्या बोल के अट्रैक्ट कर रहा है? सी, a fancy name each day, calling it Bombay ice cream one day and on the next Delhi almond. अब बेच तो वो मूंगफली रहा है तली हुई और लोगों को बुला क्या रहा है कि वो क्या बेच रहा है? बॉम्बे आइसक्रीम. कभी वो बॉम्बे आइसक्रीम करके चिल्लाता था, कभी वो फ्राइड आमंड करके चिल्लाता था. लोग सुन के आ जाते थे और देखते थे है क्या? मूंगफली. तो 4 लोग आएंगे, एक तो लेगा. तो दैट वाज अ स्ट्रैटेजी कि अलग अलग नाम से डेली लोगों को बुलाता था. अपना जो सामान है, अपना जो प्रोडक्ट है, उसका ओरिजिनल नाम ना लेके उसको फैंसी नाम देता था, अलग अलग नाम देता था. ओके, एंड ऑन द थर्ड डे राजास डेलिकेसी. तो वो कभी भी अपने फली दाने को या मूंगफली को मूंगफली बेच रहा हूं ऐसा कह के नहीं बोलता था. वो अपने कस्टमर्स को ये बोलता था मैं बादाम बेच रहा हूं, मैं आइसक्रीम बेच रहा हूं. तो वो आइसक्रीम की आवाज लगाता था तो लोग आ जाते थे. अब जो लोग आ जाते थे उसमें से कुछ चले जाते थे लेकिन बाकी लोग ले ही लेते थे. ओके, and so on and so forth. Peoples flocked to him, peoples attracted to him. Okay, now a considerable portion of this crowd dallied before the astrologer too. अब इतनी भीड़ थी, इतने लोग डेली आ रहे थे, इतनी आवाज हो रही थी, तो कुछ मूंगफली खरीद रहे हैं, कुछ चीप क्लॉथ के ऑक्शनर की आवाज सुन के आ रहे हैं. तो उसमें से कुछ ऑक्शनर के पास के कुछ आइसक्रीम जो फ्राइड ग्राउंडनट है उस ठेले के पास से कुछ एस्ट्रोलॉजर के सामने भी खड़े हो जाते थे और एस्ट्रोलॉजर को देख के ही एक तरह के हिप्नोटाइज हो जाते थे उसके लुक से और वो उससे बात करने के लिए बैठ ही जाते थे. ओके, द एस्ट्रोलॉजर ट्रांजेक्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ ए फ्लेयर.
which crackled and smoked up above the groundnut heap nearby. Now see, astrologer जब शाम होती थी तो वहां पर किसी के पास लाइट नहीं थी, तो वहां जो ठेले पर फ्लेयर जलती रहती थी, फ्लेयर लालटेन, जो लालटेन जलती रहती थी उसी की रोशनी पर एस्ट्रोलॉजर का बिजनेस चलता था. दैट मीन्स कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, शॉप नहीं है, छत नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, पेड़ के नीचे बैठा है, लाइट का बिल भी नहीं देना, लाइट भी वो पास के ठेले की जो फ्लेयर की रोशनी आ रही है उसी से ही काम चल रहा है. Now, half the enchantment of the place was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lighting. The place was lit up by shop lights. अब उस पूरे एरिया में किसी के पास भी म्यूनिसिपल लाइटनिंग का कनेक्शन नहीं था, इलेक्ट्रिक बोर्ड का इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं था. सब शॉपकीपर्स अपने अपने शॉप्स पर, अपने अपने ठेले पर, हाथ गाड़ी पर लालटेन लगाकर उससे काम चलाते थे. और एस्ट्रोलॉजर तो वो भी नहीं करता था, इसका काम पास के ठेलों की फ्लेयर से ही काम चल जाता था. ओके, नाउ one or two had hissing gas lights, some had naked flares stuck on poles, some were lit up by old cycle lamps, and one or two, like the astrologer, managed without lights of their own. It was a bewildering बहुत भीड़ भाड़ वाला, okay, bewildering crisscross of light rays and moving shadows. This suited the astrologer very well, for the simple reason that he had not in the least intended to be an astrologer when he began life. Now see, why? अब एक क्वेश्चन और बन सकता है बच्चा. अगर देखो जो क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में वो नहीं भी आ रहा है एज इट इज, तो यू मस्ट नो हाउ टू आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द एग्जामिनर. तो क्वेश्चन कुछ भी आए, आपको एक्सट्रैक्ट के बेसिस पे आंसर देना है. अगर अब ये क्वेश्चन आता है इन्हीं लाइंस पर कि व्हाई द बिविल्डरिंग क्रिस-क्रॉस ऑफ लाइट रेज एंड मूविंग शैडोज सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल, तो उसका आंसर ये रहेगा बिकॉज ही वाज नॉट astrologer by the career, by the knowledge. He was astrologer by chance. He was not having any basic knowledge of becoming an astrologer. उसने कोई एस्ट्रोलॉजर बनने की पढ़ाई नहीं की थी, उसने एस्ट्रोलॉजर बनने की कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है, सिर्फ तुक्का मारता है, वो सिर्फ तुक्का मारता है. और वो कैसे पता चलेगा? लेट्स चेक. For the simple reason that he had not in the least intended intention, इच्छा, उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी to be an astrologer when he began life. Okay, and he knew no more of what was going to happen to others than he knew what was going to happen to himself next minute. तो उसको ये भी नहीं पता था कि उसकी लाइफ में अगले पल क्या होगा, तो वो कैसे बता पाएगा कि उसके क्लाइंट की लाइफ में अगले पल क्या होगा. तो जब उसको खुद की लाइफ की कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं पता, तो वो दूसरों की लाइफ का फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट कर पाएगा. स्टिल ही वाज मैनेजिंग हिज प्रोफेशन एज एन एस्ट्रोलॉजर. ओके, he was as much as strange to the stars as were his innocent customers. तो जैसे उसके कस्टमर्स को कुछ नहीं पता था राहु, केतु, शनि, स्टार्स के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, वैसे ही उस एस्ट्रोलॉजर को भी कुछ नहीं पता था स्टार्स के बारे में कि राहु कहाँ है, केतु कहाँ है, शनि कहाँ है, कुछ नहीं पता था. बट वो अपने कस्टमर्स को पूरी तरह कन्विंस कर लेता था कि तुम्हारा राहु यहाँ है, तुम्हारा केतु यहाँ है, तुम्हारा शनि यहाँ है. तो दैट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ shrewd guesswork and practice and having a knowledge of human psychology. बस ये तीन चीजें थी उसके पास. बाकी एस्ट्रोलॉजी की एबीसी भी नहीं पता थी, एस्ट्रोलॉजी की उसको कुछ भी बेसिक आइडिया नहीं था. ओके, नाउ as strange to the stars as were his innocent customers, yet he said things which pleased and astonished everyone. फिर भी वो ऐसी बातें बोलता था अपनी क्लाइंट्स को जिसको सुनकर उसके क्लाइंट्स खुश हो जाते थे एंड एस्टॉनिश हो जाते थे, हैरान हो जाते थे, शॉक हो जाते थे कि इसको हमारी लाइफ के बारे में ऐसा कैसे पता है. तो वो कैसे पता था बच्चा? उसको कुछ एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं पता, उसको कैसे दूसरों की लाइफ के बारे में पता चलता था? बिकॉज ही वॉज हैविंग अ नॉलेज ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी. तो वो उनकी साइकोलॉजी सुनकर, उनकी बातें सुनकर उन्हीं को जवाब देता था, उन्हीं की बातों में से. ओके, नाउ दैट वॉज अ मैटर ऑफ स्टडी. देखो, प्लीज्ड एंड एस्टॉनिश्ड एवरीवन, दैट वॉज अ मैटर ऑफ स्टडी, प्रैक्टिस एंड shrewd guesswork. Shrewd guesswork, accurate guesswork.
एकदम एक्यूरेट तुक्का लगना. ओके, all the same it was as much an honest man's labor as any other and he deserved the wages he carried home at the end of the day. wages मतलब रोजी. तो वो मेहनत तो कर रहा था, ऐसा नहीं कि सिर्फ बैठा है, लोग आके उसको पैसे देके जा रहे हैं. नो, वो लोगों से बात करता था, उनकी प्रॉब्लम सुनता था, फिर उनकी प्रॉब्लम सुन के उन्हीं के प्रॉब्लम्स में से आंसर निकाल के उनको दे देता था. और अपनी साइकोलॉजी की जो नॉलेज थी कि उसको ह्यूमंस के चेहरा पढ़ने की नॉलेज थी, तो वो चेहरा पढ़ के गेस वर्क करके तुक्का मार के ऐसी बातें करता था कि उसके क्लाइंट्स खुश हो जाते थे और उस पर विश्वास कर लेते थे. ओके, नाउ अब यहाँ ये आपका एक्सट्रैक्ट खत्म होता है. क्वेश्चन नंबर 1 का A1, द फर्स्ट पार्ट A1 विल स्टार्ट एंड ये A1 आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा इन योर आंसर शीट. तो दिस इज स्टेट इफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. ये स्टेटमेंट्स आपको पढ़ने हैं और एक्सट्रैक्ट के बेसिस पे, जो भी एक्सट्रैक्ट आपने पढ़ा है उसके बेसिस पर आपको ट्रू फॉल्स लिखना है. तो बच्चा, जब आप आंसर शीट में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे, यू मस्ट राइट आंसर्स प्रॉपरली. अब जब आप अपना आंसर स्टार्ट कर रहे हो तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 है. पहले आप डालेंगे सेक्शन 1 प्रोज. आप प्रॉपरली लिखेंगे हर चीज इन द आंसर पेपर सो दैट द examiner must not have any confusion about the order, about the answer. तो फर्स्ट आप लिखेंगे सेक्शन 1 प्रोज, उसके बाद क्वेश्चन 1. क्वेश्चन 1 का A1 क्लियर. ये क्वेश्चन 1 का A1, सी A1 इज देयर. अब A1 आप लिखेंगे क्वेश्चन, स्टेट द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. उसके बाद नंबर 1. अब नंबर 1 लिख के आप सिर्फ ट्रू और फॉल्स नहीं लिखेंगे. You are giving the exam of HSC board examination. How you present your answer, that also matters. आप ABCD या ट्रू फॉल्स नहीं लिखेंगे, आप पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके आगे ट्रू या फॉल्स लिखेंगे. आपने ट्रू लिखा है, आपने ट्रू लिखा, उसको अंडरलाइन करिए. देन कॉपी द नेक्स्ट स्टेटमेंट, उसके आगे फॉल्स लिखा है तो उसको अंडरलाइन करिए. आप ऐसे लिखेंगे. ओके, तो दिस इज द टेक्निक ऑफ राइटिंग द आंसर शीट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन. नाउ रीड द फर्स्ट स्टेटमेंट, आप लोग आंसर देंगे. मैंने आपको पूरा एक्सट्रैक्ट समझाया है बच्चा. आप एक्सट्रैक्ट में से जो भी इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर आप आंसर देंगे. सी, द एस्ट्रोलॉजर यूज्ड टू हैव द प्रिपरेशन ऑफ हिज बिजनेस इन क्वाइट प्रोफेशनल वे. ट्रू और फॉल्स? मैंने आपको बताया, जैसे ही वो अपनी सेटअप लगाता था, प्रोफेशनल सेटअप, अपना पूरा सामान निकालता था, कौड़ी शेल्स निकालता था, पामरा राइटिंग निकालता था, ये सब निकालता था एज अ प्रोफेशनल. यस, तो वो अपना पूरा सेटअप प्रिपरेशन करता था. सो दिस इज ट्रू. क्लियर. सेकंड पढ़िए. द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द एस्ट्रोलॉजर हार्डली क्रिएटेड एन इम्पैक्ट ऑन द कस्टमर्स. रीड द सेंटेंस अगेन. अगर आपने हार्डली वर्ड यहां ऑब्जर्व किया, हार्डली इज अ नेगेटिव वर्ड विच गिव्स अ सेंटेंस अ नेगेटिव मीनिंग. तो हार्डली मीन्स नहीं, नेगेटिव. अगर मैं बोलूं द बॉय हार्डली स्टडीज, दैट मीन्स वो लड़का मुश्किल से ही कभी पढ़ता है, अदरवाइज नहीं पढ़ता. ओके, ना तो द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द एस्ट्रोलॉजर, तो क्या जो फिजिकल अपीयरेंस था एस्ट्रोलॉजर का, उसने एक इम्पैक्ट कस्टमर्स पे नहीं बनाया, क्योंकि इसका मतलब है नॉट, नेगेटिव. नहीं बनाया, यस और नो. उसने तो, उसके फिजिकल अपीयरेंस ने इम्पैक्ट बनाया है, ये हमने पढ़ा है. सो दिस इज फॉल्स. दिस इज फॉल्स बिकॉज उन्होंने वो इम्पैक्ट बनाया है. ओके, ना तो आप यहां पूरा लिखेंगे फॉल्स. Now, the place was busy with a variety of occupation. Yes or no? Yes, the variety of occupations were there. तो आप यहाँ लिखेंगे true. Next देखिए, the astrologer's style of handling the business lies in his skills. Yes or no? जो उसका business handle करने की या business handle करने की style है, वो business handle करने की style उसकी skill में है, उसमें हुनर है. क्या हुनर है? वो लोगों की बातें सुनकर उनको गेस कर सकता है, उनको चेक कर सकता है, ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ सकता है. तो ये उसमें हुनर है, ये उसमें स्किल है जो उसके एस्ट्रोलॉजी के बिजनेस को बहुत हेल्प कर रहा है. सो दिस इज ट्रू. अब ये जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सी द फर्स्ट क्वेश्चन A1 इज फॉर 2 मार्क्स. अब ये जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, दिस यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज.
हर एक क्वेश्चन में प्रोज हो या पोएट्री हो, हर एक क्वेश्चन में सीन पैसेज या अनसीन पैसेज, आपका फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा लाइक दिस, एंड दीज 2 marks are in your command. They are very easy to score, but the deal is you must have the idea of the story of the passage. ठीक है, अब ये तो था सीन पैसेज. अगर अनसीन पैसेज भी है तो आप पैसेज जब पढ़ोगे आपको नॉलेज हो जाएगा, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि एक्सट्रैक्ट आपको क्या इंफॉर्मेशन देना चाहता है, उसी के बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. ओके, तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज A2. देखो बच्चा, ये क्वेश्चन नंबर 1 का A1 था. नाउ वी आर मूविंग टू A2. ऐसे करके A6 तक क्वेश्चन है, 2 marks ईच. दैट मीन्स जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 12 marks का है वो ऐसे कंप्लीट होगा. ओके, तो लेट्स मूव टू A2.